ایک آپ کے دلوں سے جڑا ہوا ایک رابطہ قائم ہوا ہے اور آپ کی سماعتوں سے ہمارے جو الفاظ ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں اور تاکہ آپ ہمیں بتائیں. اور ابھی ایک حاصل کلام شعر میں ایک آخری شعر تھا جو ثاقب علی شیر صاحب نے اپنے آخری نعت میں پیش کیا, وہ مجھے بے حد پسند آیا. میری دوبارہ سے ان سے گزارش ہوگی کہ میں ان سے دوبارہ فرمائش کروں کہ بھئی آپ ہمیں یہ دوبارہ ایک دفعہ سنائیں تاکہ ہمارے دلوں کو جو ہے دوبارہ سے ایک تقویت حاصل ہو. اس سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی ہیں, دائی بھی ہیں, نصیر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں, سپہ سالار بھی ہیں, فاتح بھی, دنیا کو سنوارنے والے بھی آپ اور آخرت کو بنانے والے بھی آپ محمد بھی ہیں, آپ احمد بھی ہیں. سبحان اللہ, کیا ہی ان کی شان ہے کہ جتنا ان کا ذکر کیا جائے وہ کم ہے. کہتے ہیں نا وارفان اللہ کا ذکرک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور ان کے اخلاق سے بلند اخلاق کسی کا نہیں, ان کے نام سے خوبصورت نام کسی کا نہیں. اور سب سے بڑھ کر ان کے جیسی جو اکمل اور ایک مکمل ذات ہے, شخصیت, وہ اسلام کے میں کہتی ہوں 1,24,000 پیغمبران میں کہ نبیوں میں نبی, رحمت لقب پانے والا, تو میرے پیغمبر کی شان ہی سب سے بلند ہے. کیا ہی کہنے ہیں, سبحان اللہ. جی ثاقب علی صاحب. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو, کس طرح راضی کروں, کیسے مناؤں آپ کو. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو, کس طرح راضی کروں, کیسے مناؤں آپ کو. آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں, چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں. زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا, دل سیاہی کے بھنور میں ڈوبتا رہ جائے گا. واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا, یار غار سور کا, صدیق کونین کا. واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا, یار غار سور کا, صدیق کونین کا. واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا, یار غار سور کا, صدیق کونین کا. آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے, بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے. آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے, میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے. آپ کا ہے روٹھنا عرض و سما کا روٹھنا, عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا. آپ کا ہے روٹھنا عرض و سما کا روٹھنا, عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو, کس طرح راضی کروں, کیسے مناؤں آپ کو. اچھا ایک واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی جی اللہ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. سحری کا ٹائم تھا, مسجد میں یہ فرسٹ ٹائم جب میں نے یہ نعت پڑھی نا, تو میں جب پہنچا نا یہاں پہ, وہ آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں جہانوں کے لیے, تو میں رونے لگ گیا. اتنا رویا مائک کے اندر ہی. وہ کچھ محلے دار تھے, وہ کہتے تو ادھر خود رو رہا ہے, ہمیں بھی رلا رہا ہے. یعنی کہ وہ اتنی اچھی آواز اور اتنا وہ دل پہ اثر کیا ان کے کہ ہم سب لوگ پھر روئے. تو پھر بڑا یعنی کہ وہ دل بھر آیا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل میں ایک تو گھر بھی کر جاتے ہیں اور اثر کرتے ہیں آپ کے اوپر, کچھ راگ بھی اثر کرتے ہیں. بے شک بے شک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. نام بتائیے اپنا.
आमिर शहजाद कोट मोहम्मद से तीनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। वालेकुम सलाम जी। आप और अहमद बलोच साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, यकीनन कमली वाली सरकार ये सुन रहे हैं। जी बेशक बेशक, ऐसे ही बात है कि हाँ, आपने तो दिल वाली बात कह दी शहजाद साहब। आपको खुश तो सिर टाइम होता है लोगों के पास भी वक्त बात करने का, या यूं समझे कि अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे होते या जबान साथ नहीं देती, तो अपनी बात मुकम्मल किए बगैर उन्होंने ऑफ कर दिया। लेकिन यह है कि उन्होंने जो है हमारे भी दिल की बात की, कि कहते हैं जहां हजूर का इतने सारे लोग नाम ले रहे थे तो वहां पर वो खुद भी तशरीफ ले आते हैं। ये एक सादत की बात है कि इस तरीके से होता है। बेशक हमारे दिलों को जो है इस टाइम जकड़ा हुआ है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने, उनकी याद ने, और सबसे बढ़कर के अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई हुई है कि हमारे अल्फाज हम चाह कर भी अपना टॉपिक जो है किसी और सिमत में ले जा भी नहीं पा रहे। और इनके अलावा क्या टॉपिक होना है? महश बलोच, अच्छा महश बलोच आप भी तो कुछ बयान करें ना जी। अभी इन्होंने जैसे ये नात में कहा है कि दुश्मन भी हो गए उनके वजह से, जी जी मैं अब लास्ट में भी सुनूंगी के लिए भी दुआ करते रहे। तो ये बच्चों ने जैसे इस्लामियात की किताबों में पढ़ा, हमने भी पढ़ा है कि ताइफ का जो एक मकाम था जहां अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा कि ताइफ के लोगों को जाकर दावत इस्लामी दे और तबलीग करे। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर उन पर पथराव किया गया, पत्थर मारे गए, तो उनके जूते भी उनके जो है लहू से भर गए, लहू लहान हो गए और बेहोश हो गए। फिर हजरत जिब्राइल अमीन उनके पास आए, जिब्रील अमीन, और उन्होंने कहा कि भाई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर आप कहें तो ये दोनों पहाड़ों के दरमियान में मैं इनको ताइफ वालों को कुचल दूं। तो उन्होंने सबसे पहले उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला ये कुछ नहीं जानते, ये नादान लोग हैं। बिल्कुल। तो ये एक उनकी रहमत का देखिए, ये सबसे बड़ा है कि रहमत लिल आलमीन, और सबसे बड़े उनके दिल को अल्लाह ताला ने कोई ऐसे नूर से भर दिया था कि वो सरापर रहमत है और रहम दिली का सबूत उनके हर एक जानवर की जबान भी उनको समझ आती है। कि एक ऊंट बलबला पड़ा था यहूदी का, तो उन्होंने कहा था कि इसका ख्याल करो कि जानवरों को इस तरीके से नहीं, वहां पर रहम दिली का उन्होंने सबूत दिखाया। और दुश्मन की एक बात है कि जब वो दरख्त के नीचे सो रहे थे तो उन्हीं की तलवार उठा के उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें मोहम्मद कौन बचाएगा मुझसे। तो उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह, तो उसके हाथ कांपने लग गए। तो वहां पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो सबसे खूबसूरत वाकया जो आपकी नजर करती हूँ कि जो कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, उसमें था कि अरब में एक बुढ़िया बैठी थी सामान बांध के, तो कहती है कि मैंने यहाँ नहीं रहना, यहाँ एक जादूगर आया हुआ है कि जो अपनी शक्ल सूरत दिखाता है तो लोगों का ना जब वो दीन ईमान लूट लेता है। अच्छा। मतलब उनका मजहब वो नहीं रहता। तो मैंने ना उससे मिलना है ना मैं उसको देखना चाहती हूँ, तो मुझे ना यहाँ मक्के से तुम मदीने ले जाओ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनके पास खड़े हुए ये बात सुन रहे थे। अब उन्होंने बताया नहीं कि मैं ही वो जादूगर हूँ या मोहम्मद हूँ कि जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा सामान जो है इसका ज्यादा है, तो उन्होंने कुछ सामान खुद उठाया और भारी सामान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पकड़ा दिया कि मुझे मदीना तक छोड़ा। उस जमाने में आपको पता है कि पता नहीं कितना टाइम लगा, शब रोज गुजर गया एक पूरा। जब वहां पर पहुंची तो कहती हैं कि मतलब मुसाफिर तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। तो वो मुस्कुरा पड़े, उन्होंने कहा मैं मेरे से पूछ कर आप क्या करेंगी, इतनी दूर आप आ गई हैं और पता नहीं किससे आप बचती बचाती आ गई हैं। अब उन्होंने ये भी ना बताया कि मुझसे ही बच कर आई हैं। तो वहां पर कहते हैं तो बता तो सही कि भाई आप हो कौन। उन्होंने कहा जिससे आप बच कर आए ना वो जादूगर मैं ही हूँ। अब यकीन की बुढ़िया उनके पैरों में गिर गई और कहा कि अगर तुम वो जादूगर हो तो आज से मैं अपना दीन जो है ना वो वाकई खत्म करती हूँ और मुझे आप जो है कलमा पढ़ा दे। तो ये बात है कि दुश्मन हो या मुशरिक हो या काफिर, मैं कहती हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए उन्होंने जबरदस्ती नहीं की उनके साथ रियाकारी भी नहीं की या उनका सामान लूटने की कोशिश नहीं की या उनको कोई ऐसी बात नहीं बयान की रास्ते में मुतासिर किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो ये बातें जो है आपने जो नात पढ़ी है ना उस टाइम वो बातें जब मुझे याद आ रही थी, मैंने कहा एक बशर की हैसियत से अगर आप सोचें कि अगर आप खाना काबा में अल्लाह ताला सभी मुसलमानों के जो है दिल में ये बात होती है कि हम जरूर जाए अल्लाह का घर देखें, अल्लाह ताला तौफीक दे और सबसे बढ़कर हिम्मत हौसला दे। मोहब्बत हो ना जिस दिल में वो पहुंच के ही रहता है। अगर आप अपने काम और अपने पैशन से इतने लॉयल हो जाते हैं तो वो आपको मिल जाता है, एक मकाम मिल जाता है। तो उसके लिए भी हुब रखेंगे तो पहुंचेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। तो जब हम वहां पर गए और हमने जब 5 घंटे का एक सफर करके मक्का से मदीना हम जब पहुंचे, आप बीच में देखेंगे कि कितना ही बड़ा बर बियाबान आ जाता है, पहाड़ आ जाते हैं और खाली उन चीजों को क्रॉस करते। और उस वक्त में जब सवारी सिर्फ ऊंट होती थी, ना गाड़ी थी ना कोई चीज, उस जमाने में पैदल चलना, फिर उस टाइम के मुताबिक उनका लिबास अगर आप सोच कर आए तो आप देखें कि वो कितना कठिन वक्त होगा।
आज सोशल मीडिया हमारे हाथों में, फिर भी हम कहते हैं ओहो ये वक्त कैसे गुजरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको इतना बड़ा शब रोज और करने के लिए कुछ भी मतलब समय नहीं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप देखें कि हर कदम उनका जो है एक मिसाल है, एक बेमिसाल, एक किरदार उनका ऐसे सांचे में ढला हुआ है। तो इन चीजों को जब समझ कर आते हैं ना, तो फिर वहां पर दिल जो है ना एक दफा ऐसे पिघल जाता है, तार तार हो जाता है कि क्या ही खूबसूरत बातें उस जमाने में, क्योंकि हो सकता है कि यही कंपनियां जो थी ये सोशल मीडिया था। हाँ जी। और सबसे पहले आपको आप एक नॉलेज में इजाफा करते चलें कि सहाबा कराम उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में देखा है, उनकी आवाज़ सुनी है, उनकी शरीयत सुन्नत उनके तरीके पे अमल किया है, उन लोगों को सहाबा कराम कहा जाता है। और सबसे सहाबिया उस खातून को कहते हैं कि जिन्होंने लाइवली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंख से देखा हुआ है, उनके मिली हुई है और आवाज़ सुनी हुई है। अब लोग पूछते हैं कि ताबई के क्या मायने हैं। ताबई कहते हैं उसको जिन सहाबा कराम को देखना, जैसे हजरत अवैस करनी है, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में हजरत अली और हजरत उमर फारूक को क्योंकि वो नखलिस्तान में ऊंट चरा रहे थे, तो हजूर पाक ने कहा था कि भाई एक ऐसा वक्त आएगा बर्दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा गाली। बर्दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा गाली। बर्दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा गाली। बर्दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा गाली। जी, तो आपसे हम बात कर रहे थे कि सहाबिया के हवाले से, और ताबईन उनको कहते हैं जिन्होंने असहाबा कराम को अपनी जिंदगी में देखा हो, उसको कहते हैं। और अब हम अपने जो है यूं समझ लें कि अपने इख्तिताम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और आप लोगों से भी इजाजत चाहते। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी सानिया मलिक साहबा का, आसमा मलिक साहबा का, और सबसे बढ़कर जो है ना बहुत शुक्रिया अपने स्टूडियो में बैठे हुए साकिब अली शेर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और अपने कीमती वक्त में से इन तीनों ने अपना वक्त निकाला, क्योंकि ये जहां पर सोशल कामों से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, वहां पर इनके लिए वक्त निकालना मुश्किल है, क्योंकि इनका काम ही इतना है, क्योंकि ये हमेशा लोगों के दरमियान में पाई जाने वाली पर्सनैलिटीज हैं। इस तरीके से इनको वहां से उखेड़ के लाना मेरे लिए भी एक बहुत, लेकिन हमें मैडम यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आपसे यहाँ पे इस शो में आके बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन भी मिली है, कुछ नहीं पता था, आपसे यहाँ पे जो हमारे शो हुआ है उस पे कुछ नई चीजें पता चली हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ बहुत बहुत पर। मुझे भी एक हाजिरी हो गई है हुजूर पाक की, जो है याद में, उनकी मोहब्बत में आपने जो ये रखा है, बड़ा ही खूबसूरत था ये पूरा सजाई हुई महफिल, और सब जो है इसमें बहुत ही मुझे अच्छा लगा परफॉर्म करना, आके बात करना। और आपका भी बहुत शुक्रिया मैं विश में करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे दावत दी, और सर अहमद भी, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपकी मोहब्बत और पजीराई की बात है। साकिब अली शेर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद जी, अहमद साहब आप आ जाए। मैं भी बोलूँ साहिबा, शुक्रिया आपने मुझे अहमद साहब, हम सब की तरफ से आपका भी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे सवाल तो हम सब हैं। बहुत मेहरबानी। तो मैं भी साहिबा ने मुझे मौका दिया, मैं जल्दी से ना जनाब तमाम सामीन का, लिसनर का शुक्रिया अदा कर दूं जिनकी फरमाइशें पूरी नहीं हुई, हमें माफ़ कर दीजिएगा जनाब। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास जितना टाइम होता है हमारा दिल करता है कि आप लोगों के साथ बात करें, अपने दिल की कैफियत बयान करें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बातें करें। बेशक। तो हम भी इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइशें, हमारे पास अभी टाइम नहीं था इसलिए माजरत खा हूँ। जाते जाते साकिब अली शेर साहिब इंशाल्लाह ताला मुझे इतना अच्छा सा एक प्रोग्राम बनाए, वो प्रोग्राम एक कोई कलाम सुनाए जिससे ना इख्तिताम हो जाए हमारे प्रोग्राम को। और बंद कर देते। वो आपने एक नात बोली थी शाह मदीना। शाह मदीना। जी शाह मदीना सुना दी। शाह मदीना, शाह मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी थे
दर के सवाली शाह मदीना, शाह मदीना। यसरब के आली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना, शाह मदीना। तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया की खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना, शाह मदीना, शाह मदीना, शाह मदीना। बहुत खूबसूरत कलाम है। मैं चाहती हूँ कि दुरूद शरीफ का भी आप एक आगाज करें, फिर हम आपका साथ भी दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम भी पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। जमीनो आसमां में कोई भी निशान न मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अल्लाह का है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने स्टेशन डायरेक्टर इफ्तिखार अहमद साहब का, अपने स्टूडियो में मौजूद बिलाल अहमद साहब का, अलीशा का, और शुक्रिया मेरा अपना भी, और शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात पाक का भी जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे मेहमान हमारे पास भेजे। और अहमद नवाज तो सारे तो आखिर करना ही तुसी खुद के पहले यार शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही अपने इस सलाम पाकिस्तान का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।